Today's topic is DFS and BFS in artificial intelligence. DFS and BFS in artificial intelligence means depth first search and breadth first search. So breadth first search and depth first search is the algorithm which we use to calculate the shortest path of the grammar or tree. And what is BFS? What is BFS? Breadth first search is an algorithm that is used to graph data or searching tree or traveling structure. The full form of BFS is breadth first search. Breadth first search used mainly to searching the data or use the data to search in tree or graph. The algorithm efficiently visit and mark all the keynotes in a graph in an accurate breadth-wise function. So we have discussed a graph where the searching is completed all of these nodes, and the main part of breadth first search is uninformed search technique. FIFO. FIFO means fast in fast out queue process, and slow breadth first search is the slowest node, and it BFS is a complete data structure searching and optimal number and time. We calculate the time complexity of BFS. So the algorithm efficiency is visit and mark all the keynotes in a graph in an accurate breadth-wise fashion. This algorithm select a single node initially or source point. Select a node initially and source point in a graph, and then visit all the nodes adjacent to the select nodes. And we also called BFS access this all node one by one. Okay. Uninformed search. What is uninformed search in BFS? Uninformed search is a search where we where predefined goal and the path is not known in the client or the searching table. तो यहाँ पर क्या काम होता है अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक में? यहाँ में पहले से ही पता नहीं है कि गोल स्टेट कहाँ पर है और गोल स्टेट जाने के लिए कितना नोट्स हम लोगों को जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर नहीं पता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बीएफएस में वन बाय वन सर्चिंग होता है. एंड यहाँ पर क्या होता है, एक भी नोट्स वो मिसिंग नहीं होता, सब नोड में वो सर्च करता है, फिर गोल स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट जहां पर मिल जाए वहां पर सर्चिंग स्टॉप हो जाता है. ठीक है, एंड once the algorithm visit and mark the starting node, then it moves towards the nearest unvisited nodes and analyzes them. Once visited, all nodes are marked. This iteration continue until all the nodes of the graph have been successfully visited and marked. ठीक है, तो अनइन्फॉर्म सर्च का मतलब क्या है? अनइन्फॉर्म सर्च में स्टार्ट सिंबल से लेके गोल सिंबल तक जाने के टाइम वो हर एक नोड पे विजिट करेंगे एंड उसको मार्क करेंगे. वो विजिट हो गया, इस तरीके से मार्क करेंगे तो क्या होगा, एक भी नोट्स वहां पर मिसिंग नहीं होगा. तो वही चीज है, द एल्गोरिथम एफिशिएंसी विजिट एंड मार्क्स all the keynotes in a graph in an accurate breadth-wise fashion. This algorithm select a single node
select a single node, initial or source point in a graph, and then visit all the nodes adjacent to the selected nodes. Remember, BFS access those nodes one by one. Once the algorithm visit and mark the starting node, then it moves toward the nearest unvisited nodes and analyzes them. Once visited, all nodes are marked. This iteration continue until all the nodes of the graph have been successfully visited and marked. तुम लोग BFS and DFS तो डेटा स्ट्रक्चर में शायद पढ़े हुए हो, तो मालूम है BFS and DFS कैसे होता है? रूपम, कुमारी रूपम? Yes, sir. BFS DFS तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड शायद ये तो सब लोग जानते हो BFS और DFS कैसे होता है, कैसे वहां पर एक नोड Yes. फाइंड Yes. आउट करते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ वहां से कैसे निकलता है। देखो मेन जो प्रोसेस है यहाँ पर AI पर, तो अनइन्फॉर्म सर्च होता है एंड इन्फॉर्म सर्च होता है। अनइन्फॉर्म सर्च में क्या आता है? BFS आता है, DFS आता है। एंड इन्फॉर्म सर्च में क्या आता है? ए-स्टार एल्गोरिदम, हेरिस्टिक एल्गोरिदम और बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये सब इन्फॉर्म में आता है। इन्फॉर्म में मेन लॉजिक क्या है? वहां पर गोल स्टेट हम लोगों को पता है, तो गोल स्टेट अगर पता होगा तो नोड्स कहां पर विजिट करेगा, कौन कौन नोड पे विजिट करेगा वो मालूम है। लेकिन आर इन्फॉर्म सर्च जो BFS एंड DFS होता है, इसमें हम लोगों को ब्लाइंड सर्च होता है। यहाँ पर गोल स्टेट क्या है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है? व्हाट इज ग्राफ ट्रैवल्स? A graph travels is a commonly used methodology for locating the vertex position in the graph. It is an advanced search algorithm that can analyze the graph with speed and precise along with marks the sequence of the visited vertical. This process enables you to quickly visit each node in a graph without being lagged in an identifying loop, ठीक है। तो BFS एल्गोरिदम क्या है? द आर्किटेक्चर ऑफ द BFS एल्गोरिदम क्या है? तो BFS एल्गोरिदम एक चीज है, लेकिन यहाँ पर उससे ज्यादा हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए? एक अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक है। तो AI में BFS इतना डिटेल्स में नहीं आएगा, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर देखो, एक होता है अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक। अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक मतलब ये ब्लाइंड सर्च करता है, जो स्टार्ट सिंबल से गोल सिंबल तक अगर जाएगा तो उसको मालूम नहीं है कि गोल सिंबल कहां पर है और कितना नोड विजिट करना पड़ेगा। तो एक अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक है। फीफो, फीफो के मतलब क्या है? फास्ट इन फास्ट आउट होता है, ठीक है। फास्ट इन फास्ट आउट होता है। तो फीफो, अगर हम लोग फीफो के एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? ये जो है यहाँ पर क्या, ये टेल से स्टार्ट होगा और जो उसका हेड होगा, हेड से डेटा हम लोग को मिलेगा। तो क्या हुआ? फास्ट इन जो होगा वो फास्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? स्लोएस्ट नोड। स्लोएस्ट नोड क्यों है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्लोएस्ट नोड इसलिए है, यहाँ पर क्या होता है? एक एक करके नोड यहाँ पर विजिट होता है। जब एक सर्चिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ गोल स्टेट से, स्टार्ट सिंबल से गोल स्टेट तक, तो यहाँ पर क्या होगा? एक एक सिंबल ऐसे समझो, ऐसे यहाँ पर एक एक सिंबल विजिट होगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे एक एक सिंबल विजिट होगा, इसलिए इसको स्लोएस्ट नोड कहते हैं। क्योंकि अगर ए सिंबल होगा तो इन जो नोड है इस तरीके, इस टाइप, इस साइड पे जो नोड्स है उस नोड को भी ये विजिट करेगा, तो इसलिए क्या है? स्लोएस्ट नोड है। कंप्लीट, हम लोग BFS को कंप्लीट बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो एक भी नोड यहाँ पर मिसिंग नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर सर्च हो रहा है तो यहाँ पर क्या है? एक भी नोड मिस नहीं हो रहा है। एक भी नोड मिस नहीं हो रहा है तो हाँ बोलो। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो स्क्रीन मेरे में नहीं शो कर रहा है।
स्क्रीन नहीं शो कर रहा है? ओ सॉरी, नहीं सर, ठीक है ठीक है, तो पहले बोलो, मैं तो मैं अब मैसेज शो कर कर रहा दिया है। था सर। अब मैसेज देखे नहीं, तो ये क्या, सर शो कर रहा है, मैसेज कर दिया था मैं एक बार। ओ, तो मैं भूल ही गया। देखो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में मैं पहले बोला क्या, अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक, ठीक है। एक अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक में क्या क्या आता है, बीएफएस आता है और डीएफएस आता है। ये बीएफएस एंड डीएफएस जो है ये अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक में है। अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर हम लोग को गोल स्टेट कहां पर है वो पता नहीं है। गोल स्टेट में जाने के लिए कितना विजिट करना है वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक है। और उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लाइंड सर्च टेक्निक। ब्लाइंड मतलब हम लोग को पता नहीं है। और इनफ्रॉम सर्च टेक्निक में है, मैंने पहले दिन बोला था, ए डॉट एल्गोरिदम, ए स्टार एल्गोरिदम, हेरिस्टिक एल्गोरिदम, बेस्ट फास्ट सर्च एल्गोरिदम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग बीएफएस में क्या, बीएफएस और डीएफएस पढ़ेंगे। तो बीएफएस भी एक अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक है। तो इसमें हम लोग को मालूम नहीं है कि सर्च हम लोगों का गोल स्टेट कहां पर है, ठीक है। तो फीफो मैंने बोला, फीफो में क्या होता है, देखो अगर हम लोग बीएफएस में सर्च स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ में और ट्री में क्या होगा, ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर यहाँ पर ई, फिर एफ, जी, एच, आई, एक एक डेप पर, डेप नंबर 1, डेप नंबर 2, ऐसे ये 0 होता है, ये 1 होता है, मैं यहाँ पर गलत लिखा, 0 1 और 1 2 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर 0 ही कैलकुलेट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जो इन करेगा वो आउट हो जाएगा। समझो ये एक बॉक्स है, यहाँ पर पहले हम लोग ए को इन किया है। अगर जब ए आउट होगा तो ए का नोट क्या, ए से क्या क्या नोट होगा, बी सी डी। देखो बी सी डी, फिर बी को हम लोग आउट करेंगे, तो बी को आउट करने से क्या होगा, बी बी जो नोड में ट्रैवल कर रहा है, ई एफ यहाँ पर आ जाएगा, सी डी ई एफ, ठीक है। फिर सी को हम आउट करेंगे तो सी जो नोड ट्रैवल कर रहा है, व्हिच नोड इज ट्रैवल बाय सी, जी एच यहाँ पर आ जाएगा। ये मैं बाद में बोल रहा हूँ कैसे सर्च किया। तो इसका जो पॉइंट है, एक है अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, दो सेकंड है फीफो जो क्यू में आता है, फास्ट इन फास्ट आउट। स्लोएस्ट नोड क्यू है, क्योंकि इस सर्चिंग टेक्निक में जो गोल स्टेट से स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट पे जो भी नोड है, सब नोड में ये सर्च करता है। तो सब नोड में जब सर्च करता है तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली स्लोएस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली स्लोएस्ट नोड ये हो जाता है। फिर क्या है, कंप्लीट। हम लोग इसको कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं, इसको हम कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो, स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक सब नोड यहाँ पर स्टार्ट जो स्टेट है, यहाँ से गोल स्टेट, समझो गोल स्टेट यहाँ पर एन है, तो स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट जाने के लिए ये हर एक नोड को विजिट करता है। तो हर एक नोड को अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसको जो टाइम है, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा। तो इसलिए इसको हम लोग टाइम तो इसलिए स्लोएस्ट बोलते हैं और कंप्लीट बोलते हैं, क्योंकि अगर हर एक नोड को विजिट करेंगे तो गोल गोल नोड क्या है वो तो हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि वो तो मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सब नोड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड ऑप्टिमल ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर हम लोग यहाँ पर ये नोड का एक एक नंबर हम लोग अगर ले लेंगे तो इसमें जो रिजल्ट हम लोगों का आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, ऑप्टिमल आ जाएगा। और नहीं भी होगा तो ये नोट का नंबर अगर नहीं भी होगा तो इसका नंबर ऑप्टिमल ही आएगा। समझो ये ऑप्टिमल हम लोग कैसे निकलते हैं, यहाँ पर कितना नोट विजिट किया है वो ये बाद में मैं बोल दूंगा। वो अगर डेटा स्ट्रक्चर में तुम लोग यूज करोगे तो वर्टेक्स प्लस एज हो जाएगा, एंड एआई में अगर तुम लोग यूज करोगे तो बी टू दी पावर
डी, मतलब ब्रांच फैक्टर ए है और ये डेप्थ। तो यहाँ पर ब्रांच फैक्टर समझो हम लोग जी पर विजिट कर रहे हैं, तो जी पर अगर हम लोग विजिट करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रांच फैक्टर है 2 एंड डेप्थ है 3, तो ब्रांच फैक्टर 2 है, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो 2 है, सॉरी ये 2 है, 0 1 2 2 टू दी पावर, ये ब्रांच फैक्टर है 1 2 3 2 टू दी पावर, ब्रांच 3 है एंड डेप्थ है 2, तो 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा। ये ब्रांच है और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये डेप्थ है, डेप्थ 2 हो रहा है और ब्रांच 1 2 3, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर सर्चिंग कैसे होता है, ठीक है। तो सर्चिंग यहाँ पर देखो, ये है स्टार्ट स्टेट, और ये स्टार्ट स्टेट से अगर हम लोग क्या फीफो यूज करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, अगर हम लोग फीफो यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ए होगा यहाँ पर इनपुट ए, फिर ए जब हम लोग आउट करेंगे ए को, तो ए का ब्रांचिंग फैक्टर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3, इसका मतलब बी सी डी। फिर बी को हम लोग आउट करेंगे, बी को आउट करने से क्या होगा, बी का ब्रांचिंग फैक्टर 2 है, तो वहां पर क्या आ जाएगा ई एफ यहाँ पर आ गया। फिर सी को आउट करेंगे, सी को आउट करने से जी एच आ जाएगा, जी एच। फिर डी को आउट करेंगे, डी को आउट करने से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आई आएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ई को आउट करेंगे, ई को अगर आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जे के आ जाएगा, जे के आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ को आउट करेंगे, एफ तो यहाँ पर एफ का ब्रांचिंग फैक्टर नहीं है, तो एफ को आउट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी है वो ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर जी को आउट करेंगे, जी को आउट करने से यहाँ पर एल आ जाएगा। फिर एच को आउट करेंगे, एच को आउट करने पर क्या होगा, एच को, एच का ब्रांचिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए एच से एच का कुछ भी नहीं बैठेगा। फिर आई को आउट करेंगे, आई को आउट करने से यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जे को आउट करेंगे, जे को आउट करेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा। के को आउट करेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है। फिर एल को आउट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एल का ब्रांचिंग फैक्टर नहीं है। फिर एम को आउट करेंगे तो क्या रह जाएगा, एन, तो एन है लास्ट स्टेज, ठीक है। फिर देखो, ये तो कैसे हम लोग विजिट करते हैं नोट पे, वो वही है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ट्री है, यहाँ का विजिट हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल प्रोसेस में एक एक स्टेप लिखना पड़ता है ऐसे ही। तो यहाँ पर समझो तुमको गोल स्टेट बोल दिया कि गोल स्टेट जी है, तो गोल स्टेट जी है, मतलब इसका जो पाथ है, ट्रैवलिंग पाथ, वो क्या होगा, जी का जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स नोड जो है वहां पर जाएंगे, उसका पेरेंट्स नोड क्या है, ए है, तो ए सी जी यही होगा इसका पाथ, ठीक है। जो भी नोड यहाँ पर सर्चिंग करने से जो भी नोड हम लोग को मिल जाएगा, समझो के है गोल नोड, के अगर गोल नोड होगा तो क्या होगा, के ई बी ए, तो ए बी ई के ए है पाथ, वो ट्रैवलिंग पाथ जो होता है वो है ए बी ई के। तो ऐसे ही ब्रेडपाथ सर्च में हम लोग वो सर्चिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला है, देखो मैं और एक बार बोल देता हूँ। इन दिस वेरियस लेवल ऑफ डेटा यू कैन मार्क एनी नोड एज द स्टार्टिंग और इनिशियल नोड टू बिगिन traveling. The BFS will visit the nodes and mark it as visited and place it in the queue. And BFS will visit the nearest and unvisit nodes and marks them. These values are also added to the queue. The queue works on the FIFO model. In the similar process, we call we can say the remaining nearest and unvisited nodes on the graphs are analyzed, marked, and added the queue. These items are deleted from the queue. जरूरत नहीं है। Why do we need BFS algorithm? BFS algorithm हम लोग क्यों यूज करते हैं?
There are numerous reasons to utilize the BFS algorithm to use as searching for your data set. Some of the most vital aspects that marks this algorithm your first choice are: BFS is useful for analyzing the nodes in a graph and constructing the shortest path of traversing through this. BFS एक यूजफुल एनालिसिस होता है जो कैसे हम लोग डेटा को सर्च करते हैं और कौन सा डेटा हम लोग को इम्पोर्टेंट है ये हम लोग मालूम पड़ता है. BFS can traverse through a graph in the smallest number of iteration. The architecture of the BFS algorithm is simple and robust. The result of BFS algorithm holds a high level of accuracy. यहाँ पर accuracy बहुत अच्छा होता है in comparison of other algorithm. हम लोग जो भी अलग जो एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे वो DFS हो या A* एल्गोरिदम हो और हेरिस्टिक एल्गोरिदम है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हम लोगों को BFS में मिलता है क्योंकि यहाँ पर एक एक नोड विजिट होता है एंड एक एक नोड पे उस कैलकुलेट होता है. BFS इटरेशन आर सीमलेस and there is no possibility to this algorithm getting caught up in an infinite loop problem. तो यहाँ पर देखो एक जो यहाँ पर एडवांटेज है वो है लूप प्रॉब्लम. BFS में क्या होता है, BFS में लूप प्रॉब्लम नहीं होता. BFS में लूप प्रॉब्लम मतलब समझो BFS में ये जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा है. समझो ब्रांचेस है n नंबर तक, n का वैल्यू 10 हो, 12 हो, 100 हो. लेकिन BFS में क्या होता है, एक एक सर्चिंग कंप्लीट करते हैं, एक एक स्टेप पे एक एक डेप्थ जो होता है, एक एक डेप्थ पे वो सर्चिंग कंप्लीट करता है. तो यहाँ पर लूप में जाने का कोई भी चांसेस नहीं है. लेकिन हम लोग जब DFS और अदर्स जब एल्गोरिथम हम लोग करेंगे, DFS में क्या है वो डेप्थ वाइज वो सर्च करता है. ठीक है, तो एक डेप्थ में समझो एक ब्रांचिंग फैक्टर में ये जो A है, A का D में जो है, D का समझो A n तक है, तो समझो D का जो n तक है इस तरीके इस साइड पे वो सर्च कर रहा है, लेकिन गोल स्टेट यहाँ पर है. तो यहाँ पर अगर कोई लूप में वो रह जाए, n नंबर तक अगर नोड हो जाए तो इस साइड पे वो आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लूप में पड़ जाएगा. लेकिन BFS में ऐसा नहीं होता. BFS में क्या होता है, वो एक एक रो वाइज वो सर्च करता है. एक एक रो वाइज अगर सर्च करेगा तो वो लूप में नहीं पड़ेगा. तो BFS यूज करने का ये बहुत अच्छा एक यूटिलाइज है. Graph travels required the algorithm to visit, check and or update every single unvisit node in a tree like structure. तो BFS एल्गोरिदम में, AI में BFS एल्गोरिदम से जो भी है वो यहीं तक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. तो यहाँ का जो प्रोसेस है वो देख लेना. और यहाँ का जो मेन पॉइंट है, एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है, एक FIFO है. FIFO यहाँ पर यूज होता है. कैसे FIFO यूज हुआ वो मैंने बोला. एक एक करके जो फास्ट इन हो रहा है, यहाँ पर क्या A फास्ट इन हुआ था, A आउट हो गया, फिर B इन हुआ था, B आउट हो गया, C इन हुआ था, C आउट होगा. यहाँ पर फास्ट इन फास्ट आउट जो एल्गोरिदम है वो हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, फिर क्या है, स्लोएस्ट नोड है. स्लोएस्ट नोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड पर विजिट कर रहा है, जो पाथ है वो पाथ हर एक नोड पे वो ट्रैवल कर रहा है, इसलिए स्लोएस्ट है. क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोड मिसिंग नहीं हो रहा है. और यहाँ पर क्या है, कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मतलब यहाँ पर जब सर्चिंग स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक नोड विजिट हो रहा है. तो इसलिए हम लोग का गोल स्टेट जहां पर भी हो वो विजिट तो जरूर होगा. टाइम लगेगा लेकिन वो विजिट जरूर होगा. इसलिए क्या हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीट प्रोसेस. BFS इज ए कंप्लीट प्रोसेस. ठीक है, एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब यहाँ में जो रिजल्ट, समझो कोई भी एक नोट विजिट करने से जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, उसका रिजल्ट का जो वैल्यू होगा वो ऑप्टिमल होगा. ठीक है, यहाँ पर विजिट करने में जो वैल्यू है उसका जो आएगा वो ऑप्टिमल आएगा.
तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा ज्यादा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पर एक एक नोड विजिट करता है। ठीक है, तो ये बीएफएस गया, फिर डीएफएस आएगा। बीएफएस क्या है मालूम हो गया ना? Yes, sir. गोल्डन कुमार शिखा कुमारी। यस सर, गोल्डन कुमार सर। हाँ गोल्डन sir, कुमार clear बोलो, है। बीएफएस क्या है? व्हाट इज बीएफएस बोलो। सर बीएफएस में किसी भी बोलो जो भी मालूम है बोलो, सही बोलना है या गलत बोलना है, जो भी ये मालूम है मैंने जो बोला और तुम लोग जो जानते हो, क्योंकि बीएफएस तो थर्ड ईयर में डेटा, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर डेटा स्ट्रक्चर में तो तुम लोग का था, तो पढ़े हैं। बीएफएस तो मालूम है। और कैंपसिंग में बीएफएस और डीएफएस से तो क्वेश्चन आए ही गया, बोल देगा Yes, sir. बीएफएस का 3 या 4 प्रोसेस बोलो, बीएफएस में क्या क्या होता है उसका एक फॉर्मूला बोलो, एल्गोरिदम क्या है बीएफएस में। बाइनरी सर्च में सर इसका उपयोग होता है ब्रेड्थ में, और इसका हम हाँ। लोग बुलियन में भी, एरे में भी उपयोग करते हैं। और इसका इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का सर, जैसे ग्राफ अगर सिमिलर रहेगा तो उसमें हाँ। फर्स्ट ट्राइवर्सल में यूज करते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल है इसको कहेंगे। हाँ, वो तो और हम लोग सर यूज करते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस हम यहाँ पर मैंने बोला है, ठीक है, यस सर, जो यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डीएफएस यूज होता है, सॉरी बीएफएस, आर्टिफिशियल Yes. इंटेलिजेंस में भी बीएफएस यूज होता है। उसका बीएफएस यूज करने में क्या क्या यूटिलाइजेशन वहां पर होता है और क्या क्या फायदा होता है वो बोलो। यस सर, इसमें सर क्या करते हैं कि जैसे ग्राफ में जो रूट नोड होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसका जैसे उसका जो भी नेबुअर नोड्स होंगे उसमें सर, और उसका क्या कहते हैं, नियरेस्ट रोड को सिलेक्ट करने में उपयोग करते हैं। हाँ, और इसको अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक क्या है बोलो, अनइन्फॉर्म्ड सर्च। क्या सर? अनइन्फॉर्म्ड सर्च मालूम है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या है? नहीं सर, बढ़िया से नहीं पता है सर। जो भी पता है बोलो। अनइन्फॉर्म्ड तो इससे ही मालूम हो जाता है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म मतलब तुम्हें मालूम है, अनइन्फॉर्म मतलब तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम मालूम स्टार्ट है सर, सिंबल से मालूम है स्टार्ट सर। करके गोल इसमें सिंबल क्या कहां पर सर, जाओगे? एल्गोरिदम में इसको जैसे सर एक बीएफएस से दूसरे में उपयोग करते हैं, एक एल्गोरिदम से दूसरे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को, जैसे किसी भी ट्री को फाइंड करना रहता है तो उसका सर्च, उसे क्या सर्च करना है ब्रेड्थ में, ये बताता है सर। बिगिनिंग ऑफ सर्च फ्रॉम द रूट नोड, ये कह सकते हैं सर। और उससे क्या होता मैंने है, बोला सक्सेशन। अनइन्फॉर्म सर्च मतलब क्या है, समझो तुम एक ट्री है, ट्री में तुम्हें यस, एक स्टेट पे जाना है, समझो गोल स्टेट पे है, एक ट्री का एक ब्रांचेस है, वहां पर एक एम है, गोल स्टेट एम को जाना है, लेकिन एम को जाना है तुमको ए से एम तक, वो तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट मालूम है, लेकिन किस तरीके से उस रिजल्ट पे जाना है वो तुम्हें मालूम नहीं है। इसको ही अनइन्फॉर्म सर्च और ब्लाइंड सर्च कहते हैं। ठीक है, यस, अगर तुम्हें मालूम है तुम्हें कहां पर जाना है तो तुम्हें तो आसानी हो जाएगा ना यस सर, यस सर, उस प्लेस पे जाने के लिए। अगर मालूम ही नहीं है, समझो तुम्हें तुम्हारा अंकल का घर जाना है, लेकिन अंकल का घर कहाँ पर है वो तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हें जाना है, तो तुम निकल गए, एक एक जो सिटी है उस पे जाके तुम अंकल को ढूंढ रहे हो, लेकिन आगे तुम्हें मालूम है कि अंकल कलकत्ता पर है या कहीं पर है, तो तुम वहां पर जाके तो ढूंढोगे, लेकिन अगर मालूम ही नहीं है कहाँ पर है तो वो तुम्हें हर एक सिटी में जाना पड़ेगा। हर एक सिटी में स्टेप जाने बाय के बाद तुम वहां पर स्टेप। सर्च करोगे, वहां पर नहीं है, फिर वापस आओगे। लेकिन अगर तुम्हें मालूम पड़ गए कि इस रूट में मेरा अंकल का घर है, तो तुम तो सर्च कर लोगे इजीली ना, तो वही यस, बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। यस सर, गॉट इट। ये बोलो शिखा कुमारी बोलो।
यस सर। तुम बोलो बीएफएस क्या है और उसमें क्या क्या यूज होता है? सर VF वर्टेक्स बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम लोग फीफो का यूज करते हैं और इस ट्री में किसी भी एक नोड को रूट नोड मान के उसके सारे चाइल्ड नोड को ट्रैवर्स करते हैं और जब सारा वर्टेक्स ट्रैवर्स हो जाता है तो उसको फीफो के अकॉर्डिंग उसको ये पॉप पॉप करते हैं। और तो सर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होता है और कंप्लीट होता है और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस प्लस एज होता है। ऑर्डर ऑफ वर्टिकल प्लस एज जो होता है वो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर बोला तो तुम लोगों का क्या करना है? ऑर्डर ऑफ ब्रेथ बी टू द पावर डी। बी टू दी पावर डी, ये ब्रांच फैक्टर है, ये डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज होता है वो ऑर्डर ऑफ बी टू दी ब्रांच एक फैक्टर का डेप्थ होता है, ठीक है। और ये जो है ऑर्डर ऑफ वर्टिकल प्लस एजेस, ये हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। यस सर। सुभाष, सुभाष यस सर। तुम बोलो बीएफएस। VFS में हम लोग कोई एक रूट नोड को कोई भी एक रूट नोड ले लेते हैं, उससे सब चीज ट्रेवल कर, जितना भी हम लोग चाइल्ड नोड या फिर जितना भी ब्रांच बचे उसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं सब ब्रांच को, आई मीन सब node को। और वो इसमें ऑप्टिमल जितना क्या होता है? ऑप्टिमल जो है यहाँ पर मैंने बोला, ऑप्टिमल क्या होता है? सर ऑप्टिमल ऑप्टिमल एक प्रोसेस है, बीएफएस में यूज होता है, तो ऑप्टिमल क्या है? देखो ऑप्टिमल, तुम अगर कोई रूट नोड से ब्रांच नोड में चाइल्ड नोड पे अगर तुम विजिट करोगे तो वहां पे रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। वहां पर रिजल्ट क्या आएगा मतलब उसमें कितना टाइम तुमको लगेगा 100% और एक्यूरेसी। उसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्टिमल यहाँ पर सबसे कम होगा, हाँ बोलो, हेलो और 100% जो बोलो। एक्यूरेसी देता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। 100% एक्यूरेसी यूज ना, तो उसी को हम लोग ऑप्टिमल बोलते हैं। जो से टाइम ले रहा है, हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ले रहा है, लेकिन वो हम लोग को एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके दे रहा है, रिजल्ट लेके दे रहा है, उसे हम लोग तो ऑप्टिमल। कंप्लीट सोल्यूशन भी उसको हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन मतलब अगर हम लोग बीएफएस यूज करेंगे सर्चिंग टेक्निक में तो हम लोगों का रिजल्ट मिलेगा। वो वहां पर जो गोल स्टेट है, गोल स्टेट में हम लोग जाएंगे, उसमें टाइम लग सकता है लेकिन गोल स्टेट में हम लोग ट्रैवल करेंगे। लेकिन डीएफएस में जो होता है, डीएफएस में क्या होता है, समझो डीएफएस में क्या होता है, डेप्थ वाइज सर्च होता है। तो डेप्थ वाइज डीएफएस में नेक्स्ट दिन बोलूंगा ब्रीफली। तो डीएफएस में देखो, डीएफएस में तुम लोगों का क्या होता है, वो डेप्थ वाइज सर्च होता है। तो डेप्थ वाइज सर्च अब अगर तुम लोग करोगे तो वहां पर क्या होगा, अगर समझो इस डेप्थ में तुम लोग सर्च कर रहे हो और तुम्हारा जो गोल स्टेट है वो यहाँ पर है, तो अगर इस डेप्थ में सर्च कर रहे हो और इस डेप्थ में n नंबर तक है जो सर्चिंग प्रोसेस है और जो नोड्स है वो n नंबर तक है, एंड यहाँ पर एक लूप में पड़ गया, समझो यहाँ पर जो है ए एक है, फिर आई के बाद एम का एक नोड है, तो यहाँ पर अगर लूप में पड़ जाएगा और समझो गोल स्टेट यहाँ पर है तो क्या होगा, यहाँ पर ही ये रह जाएगा, ये सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डीएफएस में जो रिजल्ट है वो हम लोग को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और लूप में अगर आ जाएगा तो नहीं मिलेगा, और जो ब्रांचेस है वो अगर इन नंबर तक आएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन बीएफएस को कंप्लीट इसलिए बोला जाता है, बीएफएस में ए रो वाइज सर्च होता है। अगर रो वाइज सर्चिंग हम लोग करेंगे तो जो भी हम लोग का गोल स्टेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। कुमार अभिनव, यस सर। तुम बोलो, इसको हम लोग Yes. स्लोएस्ट नोड क्यों बोलते हैं, बीएफएस को स्लोएस्ट नोड क्यों बोलते हैं, बोलो।
स्लोएस्ट नोड हम लोग क्यों बोलते हैं? मालूम है? क्योंकि सर इसका ये शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करता है। स्लोएस्ट हम लोग बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं करते। स्लोएस्ट और शॉर्टेस्ट में डिफरेंस है। ग्राफ में सर शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करते हैं इससे। हाँ, लेकिन स्लोएस्ट हम लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, स्लोएस्ट हम लोग बोलेंगे इसलिए, यहाँ पर अगर हम लोग सर्चिंग स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ ए पे, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, हम लोग यहाँ पर हर एक नोड पे ट्रैवल करेंगे। तो अगर हर एक नोड पे ट्रैवल करेंगे तो गोल स्टेट पे जाने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। यस सर। टाइम तो हम लोग को ज्यादा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जो गोल स्टेट है वो गोल स्टेट हम लोग को मालूम पड़ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग हर एक नोड पे सर्च कर रहे हैं, अगर हर एक नोड पे हम लोग सर्च करेंगे तो ये तो स्लोएस्ट हो जाएगा। हर एक नोड पे हम लोग क्यों सर्च करेंगे? क्योंकि गोल स्टेट किस तरीके किस साइट पे है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसलिए हर एक नोड को हम लोग सर्च करेंगे, तो इसलिए ये स्लोएस्ट नोड है। ठीक है, ठीक है। फिर डीएफएस है। डीएफएस में कल डीएफएस बोलूंगा, कल तो संडे है, फिर मंडे को जो क्लास होगा उसमें डीएफएस स्टार्ट करेंगे। डीएफएस के बाद एक होता है, ये तुम लोग मालूम है या नहीं, ये बाई डायरेक्शनल सर्च होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल सर्च में क्या होता है, यहाँ पर बोथ साइड से सर्चिंग स्टार्ट होता है। समझो दो फ्रेंड बात करना है और मिलना है दो फ्रेंड को, तो एक अगर घर से निकलेगा और एक के घर में जाएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अगर दोनों एक साथ निकलेगा तो बीच का कोई पॉइंट में वो मुलाकात कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बाई डायरेक्शनल सर्च बोलते हैं, या में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज यही तक।